Hello students, welcome to my class. Myself Neetu Sharma, your science teacher. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 18, Earthquakes. As you studied earlier in the 7th class that there are different natural phenomena that occurs in our nearby surrounding. Some of them are lightning that you are already studied in 7th class. About thunderstorms, storms phenomena, you are also very well known about it. But in this chapter, we mainly concerned about the earthquakes. Earthquake is also a natural phenomena that occurs naturally without any human being interference. Okay, what are natural phenomena mean by? Natural phenomena are those events in which human beings involvement is not there, or we can say these events does not take place by any human activities. Okay, clear? That means natural phenomena is an event that not produced by human. These phenomena are broadly categorized into two categories. One is meteorological phenomena and other one is geological phenomena. First of all, meteorological phenomena are those phenomena which are associated that are occurs above the earth's surface. Okay, that means how thunderstorm occurs, how storms occurs, how lightning occurs. All these phenomena come under the meteorological phenomena. Okay, what are about geological phenomena? Geo word is associated with earth. Whatever the event are associated with earth itself are termed as geological phenomena, like shaking of earth crust, that is known as earthquakes, bursting of earthquakes and coming out of magma from the mantle part of the earth that is below the earth crust, that means volcanic eruption. Tsunamis, whenever shaking of earth takes place beneath the ocean floor, that cause disturbance in the water and result in the rising of high tides or high waves. These high tides or high waves are termed as tsunamis, which are another consequences of earthquake. So first of all, we want to know what is earthquake, how it occurs, and what are the different causes of earthquake. What are the effects of earthquake? How much damage it may cause? So first of all, we studied about the part that what is earthquake. आप earthquake से क्या समझते हो? सबसे पहले हम ये समझते हैं. Earthquake होता है बेटा sudden shaking. अचानक से अर्थ क्रस्ट में जो शेकिंग होती है, ठीक है, उस शेकिंग को हम कहते हैं ट्रेमर्स. TREMOR, ट्रेमर्स. ओके, this shaking or movement of earth crust is termed as earthquake. Okay, simple आपकी definition है. What is earthquake? An earthquake is sudden tremor or movement of earth crust. It lasts for very short time. ये जो shaking होती है, sudden shaking होती है, ये continuously नहीं होती है, थोड़े समय के लिए होती है, फिर रुक जाती है. ठीक है, तो it lasts for very short time. This is the definition of earth crust. Okay. अब हम एक बात करें, हमारी जो अर्थ है उसके अपर वाला जो पार्ट है, अपर मोस्ट लेयर है, दैट मीन्स क्रस्ट. ओके, इफ वी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अर्थ, दिस अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर एंड crust, or we can say it crust, earth crust. This lithosphere or crust is not a single piece. ये पूरी क्रस्ट या लिथोस्फीयर एक सिंगल रॉक पीस नहीं है. इट इज फॉर्म बाय न्यूमरस रॉक पीसेस. ये बहुत सारी छोटी छोटी रॉक पीसेस से मिलके बनी हुई है, और इन पीसेस को हम कहते हैं, ये जो रॉक पीसेस हैं इनको हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ठीक है, इन लिथोस्फीयर के ऊपर जो छोटी छोटी प्लेट्स के रूप में, पीसेस के रूप में जो सॉइल प्रेजेंट है, रॉक्स प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स. और इन्हीं का ही दूसरा नाम होता है टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आपको याद रखना है.
शेकिंग कहाँ हो रही है? इन्हीं लिथोस्फेरिक प्लेट्स में हो रही है, इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स में हो रही है, जो हमें अर्थक्वेक्स के रूप में महसूस होती है। ठीक है, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब इनमें शेकिंग होती है, अब शेकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो क्रस्ट है उसके अंदर मेंटल है। ठीक है, आपने 3 लेयर्स पढ़ी होगी। 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है बेटा? आउटर मोस्ट क्रस्ट है, बीच में जो होती है ये कोर, इसमें भी आउटर कोर और इनर कोर होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है मेंटल होता है। ठीक है, मेंटल में जो रॉक पीसेस होते हैं ये मोल्टन फॉर्म में होते हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। अब मैग्मा मूव करता रहता है, मोल्टन जो रॉक पीसेस है मूव करते रहते हैं, और इन्हीं रॉक पीसेस के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो वो भी मूव करती रहती है। तो इस तरह से इन टेक्टोनिक प्लेट्स का लगातार मूवमेंट होता रहता है, और इन्हीं मूवमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं? अर्थक्वेक कह रहे हैं। पर आप लोग बोलेंगे कि हमें हर वक्त तो अर्थक्वेक महसूस नहीं होती, अर्थ प्लेट्स तो मूव कर रही हैं, पर हमें महसूस क्यों नहीं होती? तो ये जो शेकिंग होती है बेटा, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, और जो बहुत वीक मूवमेंट होते हैं, जो बहुत ही स्लो मूवमेंट होते हैं, वो हम फील नहीं कर पाते। उस समय हम नहीं कहते कि ये अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक कब कहते हैं हम? जब ये फील होने लग जाते हैं, ये लार्ज इंटेंसिटी के हो जाते हैं, ये हमें फील होने लग जाते हैं। उन फील्ड मूवमेंट्स को, या यूं कहेंगे उन डिटेक्टेबल मूवमेंट्स को हम अर्थक्वेक कह रहे हैं। ठीक है, तो यूं अगर हम बात करें कि मूवमेंट होती रहती है, तो रोज इस तरह के अर्थक्वेक आते रहते हैं। अगर हम बात करें जियोलॉजिस्ट की, तो उन्होंने पता लगाया है कि करीबन एक दिन में 800 अर्थक्वेक्स इस तरह से नोटिसेबल हुए हैं, जो कि वीक इंटेंसिटी के होते हैं और हमें फील नहीं होते। तो लगातार पूरे अर्थ की हम बात करें तो इस तरह के मूवमेंट्स होते रहते हैं, कंटिन्यू होते रहते हैं। ठीक है, हमें कब फील होंगे वो? जब इनकी इंटेंसिटी हाई होगी, जब ये काफी तेजी से पावरफुल शेकिंग करेंगे, तब हमें ये अर्थक्वेक के रूप में फील होंगे। ओके, नाउ फोरशॉक्स की बात करते हैं। अब जैसे कि आपको बताया, अर्थक्वेक रेगुलरली हो रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये इनकी जो एजेस होती है बेटा, वो रफ होती है। ठीक है, इनकी एजेस कैसी होती है? रफ होती है। मान लीजिए 2 प्लेट्स हैं और इनकी एजेस रफ है, तो ये जब आपस में मूव करती है तो एक दूसरे से टकराती है और एक दूसरे में फिक्स होकर इंटरलॉक हो जाती है, जिसके कारण इनमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है। इंटरलॉकिंग के कारण क्या होता है? फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जो कि इनके मूवमेंट को रोकता है। ठीक है, दूसरी जो प्लेट्स हैं इन पे फोर्स लगाती है मूवमेंट के लिए, तो जब ये इंटरलॉकिंग से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो इनमें एक टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये जो टेंशन है, ये फोर्स दूसरी प्लेट्स के द्वारा इन प्लेट्स पे लगाया जा रहा है, जिसके कारण इनका जो सडन मूवमेंट होगा, ठीक है, जैसे इंटरलॉकिंग खुलेगी तो इनमें जो फोर्स लगा रहेगा वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा, और जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है ये एक वेव के फॉर्म में जनरेट होती है। ये जो एनर्जी एकदम से इंटरलॉकिंग खुलेगी तो एनर्जी लिबरेट होगी और वो वेव्स के फॉर्म में होगी। इन वेव्स को हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। वो मैं आगे इसकी बताऊंगी कि किस तरह से ये वेव्स जनरेट हो रही है। और ये जो सिस्मिक वेव्स हैं ये फिर फर्दर इन प्लेट्स को और ज्यादा मूव करवाएंगी, क्योंकि ये फोर्स है, एनर्जी है, तो इसका एनर्जी सीधे सीधे कहाँ लगेगी? प्लेट्स पे लगेगी, टेक्टोनिक प्लेट्स पे लगेगी, जिसके कारण टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करने लग जाएंगे। जहां पे इस एनर्जी की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स ज्यादा मूव करेंगी, और जहां इसकी इंटेंसिटी कम होगी, सिस्मिक वेव्स की एनर्जी की इंटेंसिटी कम होगी, वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स कम मूव करेंगी। तो हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो जिस पॉइंट पे पत्थर जाके पानी में गिरता है वहां से सर्कुलर वेव्स जनरेट होने लग जाती है। मान लीजिए वाटर यहाँ पे पत्थर गया है तो यहाँ पे सर्कुलर वेव्स जनरेट होने लग जाएंगी। ठीक है, ये जो सर्कुलर वेव्स हैं ये क्या है? ये एनर्जी का, वाइब्रेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इन वेव्स को हम कहते हैं बेटा रिपल्स। इन वेव्स को क्या कहते हैं हम? रिपल्स। तो इसी तरह से जब किसी प्लेट्स के बीच में से ये एनर्जी एकदम से निकलती है तो वो चारों तरफ फैलने लग जाती है सर्कुलर फॉर्म्स में। ठीक है,
ये जो एनर्जी है इसी को हम सिस्मिक वेव्स कह रहे हैं, और ये वेव्स सर्कुलर फॉर्म में फैलने लग जाएंगी। जिस पॉइंट से ये निकल रही है वहां पे इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर होती जाएंगी इनकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो कहा जा सकता है कि जिस पॉइंट से एनर्जी आ रही है या निकल रही है उस एरिया में जितने भी प्रॉपर्टीज होगी या जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे उन पे अर्थक्वेक ज्यादा फील होगा, और जैसे जैसे वेव दूरी पे जाएंगी तो उन दूरी वाले एरियाज पे अर्थक्वेक कम फील होता चला जाएगा, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी वीक होती चली जाएगी दूर होते होते। ठीक है, तो ये तो हो गया सिस्मिक वेव्स। अभी आप मेन ये जान लीजिए कि फोर्स शॉक्स क्या होते हैं। अर्थक्वेक, मेजर जो अर्थक्वेक है जो हमें फील हो रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जो अर्थक्वेक बहुत ज्यादा एनर्जी का होता है, अर्थक्वेक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का होता है, उससे पहले बहुत छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं जो कम इंटेंसिटी के होते हैं, और ये जो स्मॉलर अर्थक्वेक आते हैं बिफोर द मेजर अर्थक्वेक अकर्स, इन्हीं छोटे छोटे अर्थक्वेक्स को क्या कहा जाता है, इनको फोरशॉक्स कहा जाता है। Foreshocks are smaller earthquake that happens in the same place before the major earthquake happens. ठीक है, अर्थक्वेक आ गया तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अर्थक्वेक के। जहां पे भी अर्थक्वेक आएगा वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ज्यादा शेक करेंगी, और उन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी एरिया होगा, उस पे वो अपना इफेक्ट डालेंगी। क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो हमें दिखाई देता है अर्थक्वेक का वो है डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड डैम्स। जितने भी डैम्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, चाहे कैसी भी बिल्डिंग हो, छोटी बड़ी, उन पे शेकिंग होती है और कई बार ये बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर वहां कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये बिल्डिंग्स के नीचे आ सकता है वो, या कोई भी कंडीशन वहां पे हो सकती है जिसके कारण उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो सेकंड मेन कॉज क्या होता है, सेकंड मेन इफेक्ट क्या होता है अर्थक्वेक का, इट कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। लाइफ एकदम से खत्म हो जाती है उस एरिया पे अगर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हो तो। ठीक है, दूसरा क्या काम कर सकता है, फ्लड क्रिएट कर सकता है। पानी के नीचे अगर इस तरह के अर्थक्वेक आ गए तो खूब तेजी से वेव्स उठेंगी पानी की, जिसके कारण नियर बाय एरियाज में वो पानी भर जाएगा और फ्लडिंग का एक रूप बन जाएगा। तो यहाँ पे फ्लड आने के चांसेस भी होते हैं अर्थक्वेक के कारण। साथ ही साथ शेकिंग होने के कारण जो हिली एरियाज है, माउंटेन एरियाज है, वहां पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और यूं अगर हम बात करें तो ये लैंडस्लाइड्स जो हो रहे हैं अर्थक्वेक के कारण, ये मोर डिस्ट्रक्टिव है देन द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अपने आप में इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा जितना कि इनके द्वारा जो बिल्डिंग्स गिर रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इनके कारण जो लॉस होता है वो ज्यादा होता है। अगर ऐसा ही अर्थक्वेक ओशन फ्लोर में आ जाए, ओशन सी जो होते हैं उनके बॉटम में भी अर्थ का ही सरफेस होता है, अगर उस सरफेस में अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होगा, ऊपर जितना भी वाटर है उसमें शेकिंग होने लग जाएगी, डिस्टरबेंस होने लग जाएगी, और इस डिस्टरबेंस के कारण हाई टाइड्स, हाई वेव्स ओरिजिनेट होगी जो कि सी शोर पे आएंगी सीधे और काफी इंटेंसिटी के साथ आएंगी, जिसके कारण नियर बाय एरिया में फ्लड ही फ्लड हो जाएगा और बहुत ज्यादा लाइफ का नुकसान होगा, प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा, कंस्ट्रक्शन का नुकसान होगा। तो इस तरह की जो हाई टाइड्स और हाई वेव्स क्रिएट होते हैं, इन हाई वेव्स और हाई टाइड्स को कहते हैं सुनामीज। तो जब ओशन फ्लोर पे अर्थक्वेक आता है तो सुनामी क्रिएट होती है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है कॉज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किन कारणों से हो रहा है। आपको बेटा टॉपिक बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि टॉपिक वाइज आप स्टडी करोगे तो आप कहीं कुछ नहीं भूलोगे। बिफोर come to know about this topic, you have to know very well about the construction of earth, how earth is look alike। outermost जो layer होती है इसे हम crust कहते हैं। below the crust there is a molten area where molten rocks pieces are present, वो है mantle। mantle के बाद बहुत ही गर्म हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एरिया होता है, वहां पे भी मोल्टन फॉर्म में रॉक्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं अपर जो पार्ट है वो आउटर कोर कहलाएगा और अंदर का जो पार्ट है वो इनर कोर कहलाएगा।
तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इस चीज को लेबल करो। ये जो आपको सर्कुलर दिख रहे हैं अर्थ में, कौन कौन से जोन्स हैं, कौन कौन से एरिया हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कह रहे हैं, अर्थ की क्रस्ट को हम क्या कह रहे हैं, लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर सिंगल पीस की नहीं बनी हुई है, ये बहुत सारी छोटी छोटी रॉक पीसेस की मिलके बनी हुई है, ठीक है। सिंगल पीस नहीं है, ये टुकड़ों में बनी हुई है, स्मॉल पीसेस में बनी हुई है। और ये पीसेस किसके ऊपर रेस्ट करते हैं, मेंटल के ऊपर रेस्ट करते हैं। मेंटल जो एरिया है उसके ऊपर ये पीसेस रखे हुए हैं, ठीक है। आपस में ज्वाइन नहीं है किसी भी ग्लू से या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इनको ज्वाइन करे हुए, ये फ्री है, ठीक है। जैसे ही मैग्मा का मूवमेंट होता है मेंटल में, उसी के साथ साथ इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स का भी मूवमेंट होने लग जाता है। ये जो स्मॉल पीसेस होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स on the lithosphere, or we can say crust, is termed as lithospheric plates or tectonic plates. Okay, these are termed as lithospheric plates or tectonic plates. ये आपको याद रखना है, क्लियर है। अब जो अर्थक्वेक हो रहा है उसमें सडन शेकिंग हो रही है कहीं डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के कहीं अंदर की तरफ से ये शेकिंग स्टार्ट हो रही है और ये ऊपर की ओर वाइब्रेट होती हुई आ रही है। इसकी जो वेव्स है वो चारों दिशाओं में वाइब्रेट होती हुई बाहर की ओर मूव कर रही है, आउटवर्ड मूव कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही मेंटल मूव करता है, मेंटल मूवमेंट के कई कारण हो सकते हैं। मेंटल जैसे ही मूव करेगा तो अचानक से ये जो प्लेट्स हैं ये भी मूव करना शुरू कर जाएंगी, ठीक है। और ये जो प्लेट्स होती है बच्चों, इनमें रफ एजेस होते हैं, इनकी जो एजेस होती हैं ये रफ होती है, ठीक है, क्लियर कट नहीं होती है, रफ होती है। तो मान लीजिए आपस में ये दो प्लेट्स हैं और इनके मूवमेंट के कारण इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, या यूं कहेंगे आपस में जुड़ गई। ये दो प्लेट्स हैं, आते आते पास में आते आते ये आपस में जुड़ गई और रफ एजेस के कारण ये एक दूसरे से निकल नहीं पा रही, फंस गई, इनमें इंटरलॉकिंग हो गई है, ठीक है। इस इंटरलॉकिंग को फ्रिक्शन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो इस इंटरलॉकिंग को निकालने के लिए, इस इंटरलॉकिंग को खोलने के लिए इनको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। हम इसको इंटरलॉक कैसे करेंगे, हम इसको फोर्स लगाएंगे तब ये आपस में हटेंगे। तो ये जो फोर्स लग रहा है, दूसरी प्लेट्स भी होंगी ऊपर नीचे राइट साइड में जो कि इस पे फोर्स लगा रही होंगी, जिसके कारण एक टेंशन क्रिएट होता है इन प्लेट्स के बीच में। और अचानक से जब ये इंटरलॉक खुलता है तो ये फोर्स एकदम से एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। ये फोर्स किस फॉर्म में रिलीज होगा, एनर्जी के फॉर्म में। और इसी एनर्जी के कारण एक वेव्स बन जाएंगी वाइब्रेशंस की। कौन सी वेव्स बनेगी, वाइब्रेशन की वेव्स बनेंगी। और इन्हीं वेव्स को हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स। एंड दिस सिस्मिक वेव्स गिव राइज टू अर्थक्वेक। इसी सिस्मिक वेव्स को हम क्या कह रहे हैं, अर्थक्वेक कह रहे हैं। क्लियर है की बात। तो इनके बीच में जो इंटरलॉकिंग होगी, इंटरलॉकिंग के कारण एक टेंशन क्रिएट होगा। इंटरलॉकिंग के कारण क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। और इस टेंशन को ओवरकम करने के लिए, मतलब इस इंटरलॉकिंग को खोलने के लिए टेंशन रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो टेंशन है किस फॉर्म में रिलीज होगा, एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। And this energy give rise to waves. Energy give rise to waves. और इन वेव्स को हम बच्चों क्या कहते हैं, इन वेव्स को हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। जहां पे भी वर्ड सिस्मिक पढ़ो इसका मतलब वहां अर्थक्वेक की बात हो रही है।
सिस्मिक वर्ड इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक। तो ऐसी वेव्स जो अर्थक्वेक को प्रोड्यूस कर रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सिस्मिक वेव्स कहेंगे। और ये सिस्मिक वेव्स एक पॉइंट से बाहर की ओर मूव करती हैं, आउटवर्ड फैलती चली जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पानी में अगर कोई पत्थर डालो तो ये बाहर की ओर वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, जिनको हम रिपल्स कह रहे हैं। तो इन्हीं रिपल्स के फॉर्म में सिस्मिक वेव्स भी बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करने लग जाती हैं। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है और इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से वेव्स, या यूं कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एकदम से इंटरलॉकिंग खुली तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, तो इससे एनर्जी जो रिलीज होगी वो इस डायरेक्शन में चारों दिशाओं में मूव करेंगी बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ मूव करती हुई, आउटवर्ड मूव करती हुई दिखाई देंगी। इन वेव्स को कहते हैं सिस्मिक वेव्स। क्लियर है? इन सिस्मिक वेव्स के कारण ही अर्थक्वेक जनरेट होता है पर्टिकुलर प्लेस में। क्लियर है? जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, जो कि कहीं क्रस्ट के अंदर होता है, सरफेस के अंदर होता है। ऊपर से हम इसको लोकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन बता सके अर्थ क्रस्ट के अंदर, कि कहीं क्रस्ट के अंदर उस पॉइंट से ये वेव्स ओरिजिनेट हुई हैं, चालू हुई हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट हम फोकस का एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाते। एक यूं कहेंगे आइडिया लेके बता देते हैं कि यहाँ से कहीं से फोकस पॉइंट है और यहाँ से सिस्मिक वेव्स जनरेट हुई है, पर अर्थ सरफेस पे हम इसको लोकेट कर सकते हैं। क्या करते हैं जियोलॉजिस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो इस तरह की स्टडी करते हैं अर्थक्वेक्स वगैरह नेचुरल फिनोमिना की, तो वो क्या करते हैं, इस फोकस के जस्ट अबव सरफेस पे एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं और उस पॉइंट को फोकस जितना ही इम्पोर्टेंट समझ ये बताते हैं कि इस पॉइंट से वेव्स जनरेट हो रही हैं। तो फोकस के ऊपर, मान लीजिए अर्थ क्रस्ट है और ये फोकस है, तो फोकस के ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, फोकस से ओरिजिनेट होती है सिस्मिक वेव एक्चुअली, पर इसका लोकेशन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसकी लोकेशन हम आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट इसके अबाव सरफेस पे एक पॉइंट नोट कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर, और माना जाता है कि एपिसेंटर से ही सिस्मिक वेव्स जनरेट हो रही है अर्थ क्रस्ट। क्लियर है? फर्क दोनों में सिर्फ इतना है, फोकस अर्थ के अंदर है, क्रस्ट के इनसाइड में है, और एपिसेंटर ऑन द सरफेस है, सरफेस के ऊपर है। तो आप ये ध्यान रखेंगे एपिसेंटर और फोकस में डिफरेंस है। ये हम नेक्स्ट क्लास में भी आपको समझा देंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगली क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज का आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।